السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی کے بہت دنوں بعد ہماری محفل میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے عرب دوست۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیف الحال یا شیخ؟ الحمدللہ۔ کیسی گزر رہی ہے پاکستان میں؟ استغفر اللہ۔ کیوں؟ خیریت؟ ہر طرف توپن شروع ہو گئی، ان گرمی، ان پسینتن۔ تو آپ کی طرف کون سا برف پڑ رہی ہے؟ وہاں تو ہر چیز ایئر کنڈیشن تن۔ یہاں پہ رکشے پہ بیٹھ جاؤ کوئی نہیں اے سی تن، ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ تے کوئی نہیں اے سی تن، جے ہے تے چلاندہ نہیں تن، کہندہ پٹرول بڑا مہنگا تن، کسے دفتر اچ ٹر جاؤ تے پسینو پسینی ہوئے تن، فائلان دے اتے پسینے سڑتے تن، جے کہیے تھوڑی دیر آستے اے سی چلا دیو تن، کہندے نے معافی تن، ٹیشو دا ڈبا آگے رکھ دے تن، پسینہ پونجو تن۔ اور یا شیخ، اتنے بھی آپ کے سوئٹزرلینڈ سے نہیں آگئے؟ ظاہر ہے آپ گرمی کے عادی تو ہیں نا؟ عادی ہندے تن، پر ساڑھے کل فیسیلیٹیز ہندی تن۔ اور یا شیخ، سمندر والا تیل نکل تو لینے دینا ابھی۔ وہ جدو نکلے گا تن ویکھاں گے تن، ہلے تے عوام دا ہی تیل نکل دا تن، تیل ویکھتے تیل دی تار ویکھ تن۔ اچھا، اب یہ حالیہ دورہ کس زمن میں آپ کا؟ اس دفعہ اس واسطے دورہ کیتا تن کہ یہاں پہ اردو اور پنجابی کی ٹیوشن رکھنی تن۔ کریے؟ ہاں، ہم ادھر سارے ڈبنگ کر دے تن، جس طرح تھے نہیں تو اڈے منڈے ٹک ٹاک کر دے تن، اسی ہوتے ٹک ٹاک کرنے والے منڈے تن۔ ڈبنگ کیوں کرنی ہے اب آپ نے؟ ادھر ہم اب آپ کے ڈرامے اور فلمیں چلاواں گے تن، ان کی عربی میں ڈبنگ کریں گے تن اور اسی کریں گے تن۔ اس واسطے تھے آ کے تو ٹیوشن رکھی تن، اردو اور پنجابی دی تن، اور سانو سب تو وڈا سیاپا اے پیا ہویا تن کہ سلطان رائی نو کہ میں عربی چ ڈب کراں گے تن۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بڑی مشکلہ سکھیا تن کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردہ تن۔ تو کیا؟ مولا معافی موت حتی من موت مولا۔ اتنا بڑا مشکل سے یاد کیا تن، پھر اودا وقت پہ گیا تن، نواں آئیں سونیا تن، وہ بھی کر لیا ٹرانسلیٹ؟ ہو گیا تن انتائی جی جدید۔ آجا ڈبنگ کرا تن، فلم مزاحیہ بنا تن، ایسے خود مزاحیہ بن گئے تن۔ ابھی تو آپ کو ٹی وی ڈراماز دی ہیں نا ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے؟ وہ بھی پرانے دے دیتے تن، تنہائیاں اور دھوپ کنارے تن۔ حسینہ معین کے لکھے ہوئے شورۂ آفاق ڈراما سیریلز ہیں یہ ہماری۔ ہیگے تے پرانے تن، سانو بھی پتہ ہے بہت اچھے تن، مگر پرانے تن۔ آج کل دے جدید ڈرامے دیو تن، جدے ذرا چلبلے سین ہندے تن، لب سین کھل کھلا کے ہندے تن۔ او بابا، تنہائیاں میں کون سے سراج الحق صاحب ہیرو ہیں؟ وہ بھی بہت چلبلا تھا۔ سراج الحق صاحب تے ساڑھے بھی ہیرو تن، مگر ڈراما تن۔ ذرا آج کل دے ڈرامے جدت ہندی تن، میوزک شوزک نما ہندہ تن، پرانے ڈرامے پرانے ہندے تن۔ یا شیخ، اس میں مرینا خان اور شہناز شیخ ہیں۔ یا شیخ، شہناز شیخ اور مرینا خان بھی تن۔ کمالن دو میں بڑیاں بڑیاں آرٹسٹ ہندیاں تن۔ اچھا یا شیخ، یہ فرمائیں کہ ڈائلاگز کے علاوہ جو اس کا میوزک ہے وہ بھی عربی میں ڈب کریں گے؟ اسی گانے تک بدل دیتے تن، سارے گانے ساڑھے ہون عربی چ ہندے تن۔ اچھا، ہاں، ساڑھا آرٹسٹ بہت اچھے گانے ڈب کر لیندہ تن۔ ڈبنگ تک ہی رکھیے گا۔ زمانے میں رہ کے تن رہے ہم اکیلے تن، ہمیں راس آئے نہ تن دنیا کے میلے تن۔ تم کہہ رہے ہیں یہ تن کہہ رہے ہیں؟ تن، اچھا تن۔ یہ تو سارا ہم کر لیں گے تن، مگر ہم جدید ڈرامے بھی چاہتے تن۔ آج کل کے جو جدید ڈرامے تن، رانجا رانجا کر دی تن، ہاں، رانجا رانجا، اس کو کیا کریں گے؟ اس کی طرح کا دیو تن، لیلا مجنو دیو تن، ساڑھی عربی سٹوری تن۔ ہاں، تو آپ رانجا رانجا کو کر دیں کہ مجنو مجنو کر دی تن۔ ایسی رانجا رانجا دے گئی لالیں گے تن، مگر چاہیے جدید ڈرامہ تن۔ یا شیخ، جب آپ تنہائیاں اور دھوپ کنارے وغیرہ دیکھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ 50 سال آگے کے ہیں۔ ایمان سے اتنا جدید ان؟ یس واللہ
یا शेख आप घबराएं ना, आपको ऐसा ऐसा ड्रामा देंगे कि आप इंडियन फिल्में भूल जाएंगे। हम जानता तो ना आपके टेलीविजन की बड़ी मशहूरी तुम, बस हमारे 2-3 साल कटा दियो तुम, उसके बाद हम खुद पंजाबी उर्दू में रवा हो जाएंगे तुम। अच्छा, फिर? और पंजाबी फिल्में हम अपने अरब इलाके में बना लेंगे तुम। अच्छा, हाँ हाँ, साढ़े कोल ते पंजाबी फिल्मां दा बनिया बनाया हीरो है तुम। ये हीरो है? पंजाब का हीरो एडा ही हुंदा तुम। ये दुखट होएगा तुम ते पंजाबी लगेगा नहीं तुम। या शेख ये कौन सा हीरो है? ਇਹੋ ਹੀਰੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀਰੋ ਜੁਮੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਧੌਣਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੂੰ। ਬਸ ਸਾਜ਼ਾ ਫਿਲਮ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਊਂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਤੂੰ ਤੇ ਊਂਠ ਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਤੂੰ। ऐसी कोई बात नहीं तुम, अपने हीरो को अरबी घोड़े पे बिठाएंगे तुम। ऊंट डिग्गा तुम तो घोड़े का की हाल होगा तुम। छड़ दियो तुम, ना घबराओ तुम, एहो ही साडा हीरो तुम। मैं घोड़े ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤੁਨ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਤੁਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੁਨ। ताकि लंघते जाते नु कवांगा तो नहीं तेरी अल्लाह खैर करे सकूंगा। क्यों बदनाम करना तुम? अरबी सबको दे दे तुम, मांगते नहीं तुम। ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੁਨ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੁਨ। क्यों बैठा रवांगा तुम? तेरियां लत्तां मारियां गईयां तुम। तू हीरो तुम, नस भज के बाग च गाने करा तुम, अद्धी फिल्म च तेनू इट्टा मारांगे तुम, फिर हीरोइन तेरे अगे खलोगे कहेगी तुम कोई पत्थर से ना मारे मेरे वालिद साहब को तुम, सॉरी दीवाने को तुम। जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है। वो तुम उस वक्त कहोगे जब तुम्हें 2-3 हफ्ते भूखा रखेंगे तुम। मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। ओ बरियानी वाली पिकअप गुजरेगी तुम और तुम उसके पीछे भागते कहोगे तुम मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। या शेख ये कौन सी फिल्म बना रहे हैं? हम अपने हीरो के मुताबिक सिचुएशनें डालेंगे। अगर आपने हीरो के मुताबिक फिल्म बनानी है तो खूबसूरत फिल्म बनाए। वो जो आखिर में बैठे हैं आपके दोस्त, इनको हीरो ले लें। बुरे नसीब मेरे तुन, बुरे नसीब मेरे तुन, वैरी होया प्यार मेरा तुन, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा तुन तुन तुन। वाह वाह वाह, तिया अच्छा मारे या तुम। शेख आपको तीये का भी पता है? त्रिगड़धिन, त्रिगड़धिन, त्रिगड़धिन। क्या करता तुम? या शेख फिल्म आपस ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਤੁਨ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਨ, ਹੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੁਨ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਮ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਮ, ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਤੁਮ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਤੁਮ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਤੁਮ। या शेख ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਰੱਖੋ ਤੁਨ, ਟਿਕਟ ਨਾ ਵੀ ਵਿਕੀ ਤੁਨ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਨ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਮ? ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈੱਡ ਨੰਬਰ 14 ਨਹੀਂ ਤੁਮ। या शेखा जे ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਨ, ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਖਜੂਰਾ ਕਿਨੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਤੁਨ? ਤੂੰ ਵੇਚ ਲਈ ਤੁਮ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣਾ ਤੁਮ। वो खुद को फवाद खान कंसीव किए बैठे हैं। या शेख ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖੋ ਹੀਰੋ ਤੁਨ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਸੌਂਗ ਪਾਓ ਤੁਨ, ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਨ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿਣ ਸ਼ੌਕ, ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿਣ ये तो ਸ਼ੌਕ। तुम कहोगे तुम, तुम्हें देख के लोग क्या कहेंगे तुम। क्या रफीका मैनू हीरो रख तुन। फिल्म बच्चियां ਲਈ नहीं बनानी तुम, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣੀ तुम। या शेख एक अर्ज करूं, मेरा ख्याल है कि आप ये अपनी फिल्म बनाने का आइडिया छोड़ ही दें, हमसे ही ले लें, उसकी डबिंग करते जाएं। ठीक है, फिर वो फिल्म बंदिश दे दियो तुम। न सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा तुम। या शेख आपके पास तो इतना सोना है। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ 4-4 ਬੀਵੀਆਂ ਤੁਮ, ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤੁਮ, ਨਾ ਸੋਨਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਜਾਨੇ ਮਨ, तुझको मैं दे सकूंगा।
हाँ हाँ फिल्म दी हीरोइन ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰਾਂ ਘੜਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਲਈਏ ਤੂੰ आपकी भी 4 बीवी है? ਨਹੀਂ 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 ਇਹਦੀਆਂ 4 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ 4 ਅੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਬੀ ਦੀਆਂ 4 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ। बहरहाल असी बड़े खुश हैं तुन कि आपके ड्रामे और फिल्में अब हमारे यहाँ भी लगेंगे तुन। हाँ, नहीं इस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान जो कल्चरल वैल्यूज हैं एक दूसरे की, जाहिर है उनका तबादला होगा। और फिर टूरिज्म भी बढ़ेगा तुन, हम भी इधर आके देखेंगे तुन, फिल्म में जो लोकेशनें थी तुन वो किधर आएगी तुन। हाँ, हमारे यहाँ तो अरब कल्चर का पहले से बहुत ज्यादा एहतराम है। हमें मालूम उन आपके यहाँ खजूर बड़ी बिकती तुन। नहीं सिर्फ खजूर ही नहीं, आपकी पूरी सकाफत जो है उसकी तमाम जुजियात जो हाँ है जी। वो हम एहतराम की नजर से देखते हैं। जाहिर है तुन हमें मालूम उन यहाँ बहुत सारे अरबी फूड्स के होटल भी खुल गए तो हमारे यहाँ भी अरब ममालिक में पाकिस्तानी फूड बहुत खाया जाता हाँ, था। बहुत ज्यादा पॉपुलर। मैं हाले सवेरे खुद मकई दी रोटी ते सरों दा साग खा के आया अच्छा, really? उत्ते मक्खन भी पाया तुन, लाल अदरक का भी पीता तुन। ये वेंदा रह गया तुन, मैं एक बुरकी नहीं लान देती तुन। मैं कहा चल परे हो जा तुन, तेरे नु परे जो छटाला पाया तुन। साग खा ते लिया तुन, मगर वो पेट दे विच डांस करता था। ਯਾ ਸ਼ੇਖ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੁਰਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ। तेरा स्टेप एक कदी बुरकी नल नहीं हुंदा तुन, पूरी देग नल हुंदा तुन। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। मैंने पर खान साहब से राब्ता किया है, तो वो जो उन्होंने जिन अल्फाज में इस सारे मामले की तरदीद की है, मेरा ख्याल है कि वो अल्फाज ही अगर दोहरा दिए जाएं तो मामला बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। अच्छा भाईजान, इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ आएँ, मैं एक ख़बर कौम के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि एक तरदीद या वजाहत है। पिछले चंद दिन से एक बहुत ख़बर गर्म है कि गालिबन इमरान खान साहब की जो बुशरा बीबी के साथ शादी है वो कुछ डामाडोल है और शायद वो ख़ात्मे की तरफ जा रही है और वहाँ पे बड़ी लड़ाइयाँ पड़ गई हैं, ये हो गया वो हो गया। हमारे कुछ जो साथी हैं वो बड़े चहक चहक कर लहक लहक कर ये ख़बर कौम को सुना रहे हैं कि मतलब नो मोर, गेम इज़ ओवर। और मैंने फिर बहुत झिझकते ज़ाती तौर पे खान साहब से राब्ता किया कि ये क्या मामला है। तो और फिर अगले 2 दिन के बाद फिर ये मैसेजिंग भी शुरू हो गई है जो उससे ज़्यादा है कि जी बुशरा बीबी वो बनी गाला छोड़ के शिफ्ट हो गई हैं कहीं और। ये तो फिर इन तमाम ख़बरों और अफवाहों के बाद मैंने पर खान साहब से राब्ता किया है, तो वो जो उन्होंने जिन अल्फाज में इस सारे मामले की तरदीद की है, मेरा ख्याल है कि वो अल्फाज ही अगर दोहरा दिए जाएं तो मामला बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। उन्होंने लिखा है कि जुनैद, माय वाइफ इज़ अल्लाह's ग्रेटेस्ट नेमत फॉर मी। गुड। मेरी अहलिया अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है मेरे लिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा जो दिल में मेरे शक शुबा मौजूद था, इधर इतनी इन स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स थी, तो मैंने फिर पूछा था खान साहब से कि कोई ये 100% गलत है। तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया था कि 200% नॉनसेंस। 200% नॉनसेंस। वी विल बी टुगेदर एज लॉन्ग एज वी लिव इंशाल्लाह। हम उस वक्त तक इकट्ठे रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह। ये उन्होंने कहा। तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि इन हालात में जब मतलब कौम एक इम्तिहान से गुजर रही है, मुश्किल हालात हैं कई हवालों से, तो उस और छत्ती से आपे पए तुसी कादली किसी की जाती जिंदगी को जिंदगी और फिर और खास तौर पे वजीर आज़म उनका ज़हनी इत्मीनान और ज़हनी यकसुई इन हालात में कौम के लिए भी फ़ायदामंद है, सूदमंद है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ ना हो। तो मेरा ख्याल कि इसके बाद अब ये जो अफवाहों का सिलसिला है ये मेरा ख्याल दम तोड़। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। आजकल आप अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिर बार बार उस पर गूंज सुनाई दे रही है, गंदम की सब्सिडी, इतनी गंदम खरीदी जाएगी। फिर लोग कहते हैं कि एक रिश्वत का बाजार गर्म होगा जिसमें हमारे कई सरकारी महकमे
उस बहती गंगा में हाथ धोएंगे। तो बारहा हमने इसका जिक्र भी किया है और मतलब रोना रोना तो कम लफ्ज़ है, मेरा ख्याल धाड़े मार मार के रो चुके हैं कि खुदा के लिए ये जो गंदम की सब्सिडी है इसका कोई माकूल अंदाज में हल तलाश किया जाए। अब भाईजान हालात ये हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो कमो बेश 40 अरब रुपया गंदम की सब्सिडी पे खर्च करती है, जिसमें से 28 अरब रुपया काश्तकारों को दिया जाता है और 11-12 अरब रुपया एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है। मैं शायद फसलों दी सुंडियां नु दिता जाए। तुम जरा सानू भी कोई मिलेगा कि आपस ही मंडी जा रहे हैं? यार बात तो सुनो खुदा के लिए, तो आप लोग सुन के हैरान रह जाओगे कि ये हम क्या कर रहे हैं। कई सालों से बल्कि कई दहाइयों से गंदम की जो सब्सिडी दी जा रही है कि हम काश्तकार से गंदम महंगे दामों सरकार हुकूमत खरीद लेती है, फिर जब बच जाती है तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब जो एक्सपोर्ट करते हैं तो आलमी मंडी में उसकी कीमत होती है 10 रुपए, काश्तकार से हमने खरीदी होती है 13 रुपए में। पहले काश्तकार को सब्सिडी दी जाती है, फिर हुकूमत एक्सपोर्टर को सब्सिडी देती है कि तुम पैसे हमसे ले लो लेकिन इससे जान छुड़ाओ, एक तरह से इसको एक्सपोर्ट करो, पैसे बाकी हमसे ले लो, क्योंकि आलमी मंडी में तो सस्ती है ना गंदम। तो हम उसको मैच करने के लिए, आलमी मंडी में कीमत को मैच करने के लिए हुकूमत एक्सपोर्टर को भी पैसे देती है। अब ये जो 40 अरब रुपया है ना अजीजी भाईजान द ग्रेट, मेरी इस्तदा ये है, मेरा रोना ये है, मेरी फरियाद ये है कि ये 40 अरब रुपया जो है हमारे किस किस काम आ सकता है सिर्फ ज़राअत के शोबे में ही। मेरे सोने जेड़े भी काम आंदा मैनू तो इन्नी बड़ी खुशी है कि मेरे नाल अरबां दी गल हो रही है। मेरे सोने अभी तो रुपयों में अरब इस्तेमाल हो रहा है ना, अरबों रुपए की बात हो रही है। जी जी। अब जो हमें खर्च करना पड़ता है मसलन वो डॉलर्स में खर्च करना पड़ता है, जो ज़र मुबादला जिसका हम रोना रो रहे हैं। असद उमर साहब की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं कि इंपोर्ट जो है ये कैसे कम करें। तो इंपोर्ट की मद में आप सुन के हैरान रह जाएंगे, जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, पकौड़े तलते हैं, साहब पकौड़ों वाला तो खैर पता नहीं वो मोबाइल ऑयल होता है, लेकिन घरों में जो हम अच्छा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इन ऑयल्स की मुख्तलिफ किस्म के जो ऑयल्स हैं हम इंपोर्ट करते हैं, उन पर हम 3 अरब 64 करोड़ डॉलर इस्तेमाल करते हैं। 3 अरब 64 करोड़ डॉलर, ये हमारा जो इंपोर्ट की मद में हम पैसे ज़ाया करते हैं ना ज़र मुबादला, ये पेट्रोल और मशीनरी के बाद तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पे हमारे पैसे ज़ाया होते हैं। ओ गोगे खुदा दा वास्ते तेल पीना छड़ दे। ओ मैं तो तेरे हाल वेखदा नहीं पिया, डरदा। और तुम ये देखो, मैं तो सिर में नहीं लाਉਂਦਾ, अब लगाना छोड़ेगा। तू तां लाए ना कि कोते बूटा शूटा हो गया, सिर नु कादे लई लाना ही, हाथ तलकाण वास्ते। तुमने तो तेल की बात की ना, मैं सोच रहा हूँ कि गंदम का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। गोगे को देख के तो लगता है कि तेल तो नहीं जाया हुआ, गंदम बहुत जाया हुई है। बिल्कुल। अच्छा, फिर हम ये देखें कि हम एक ज़राई मुल्क हैं और ये जो खुर्दनी तेल है ये सिर्फ हम 10% पैदा करते हैं, 90% हम इंपोर्ट करते हैं। और तो और यार, अब दालें सर जी कादा बनता खुर्दनी मुख्तलिफ चीज़ों का, मतलब उसमें सोयाबीन है, उस पर पाम ऑयल है, उस पर ये तिल है, इधर चीजें हैं वो बनाते नहीं। हाँ, हम उगा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, हमारे पास इतने वसाइल मौजूद है। आप सिर्फ काश्तकार को यही जो सब्सिडी है ये दें, अच्छा बीज मुहैया करें। आप सब्सिडी की मद में अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, फिर दालें यार 15 लाख टन दाल इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में, जिसमें से आप खुद कितनी पैदा करते हो? सिर्फ 6 लाख टन। कौन सा ज़राई मुल्क है यार? हम 9 लाख टन हम दालें हर साल इंपोर्ट करते हैं। उस पर पैसा कितना लगता है? 95 करोड़ डॉलर हम दालों की इंपोर्ट पे खर्च कर देते हैं, यानी कम से 1 अरब डॉलर हो गया ना। है जी, और ये डॉलर है, इसका मतलब है कि कोई 1.5 खरब रुपया। गोगा जी, ये जो आप बड़ा ये कह देते हैं ना कि यार मां दी दाल मेदे च बह गई है, तां बह जाती जे 1.5 खरब रुपये दी जे। 1.5 खरब दी दाल मैं ही खा जाना, चले विच 2-3 बुरकियां को होर भी ला लेंदा, तेल भी मैं ही पी जाना, फसलां भी मैं ही खराब करना। सारे पाकिस्तान दा मुद्दा ही तेरे ते पाना है। ਇਹ ਤੇ ਹਲੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।
دنیا مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید میاں, میں بھی بغیر کسی تمہید کے سیدھا سیدھا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں لیے اچھا, جو 22 کروڑ عوام ہے پاکستان کی, جس میں 21.5 کروڑ غریب عوام ہے, ان کو بیچاروں کو سانس نہیں آ رہی. ابھی جب میں آیا ہوں شو میں حاضری دینے کے لیے, تو یہ اپنے آپ کے زلفی صاحب باہر 2-3 لڑکے ان کے ادھر کمر کے اوپر ہاتھ مار رہے تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں جی سانس نہیں آ رہی. پھر میں نے مشورہ دیا کہ ان کی ٹائی اتارو پھر سانس آئے گی. ٹائی اتاری ہے پھر بھی سانس نہیں آئی. پھر کالر جو ہے وہ اوپر سے پھاڑا ہے, پھر نہیں سانس آئی. پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ فکر نہیں کریں, آپ کی سانس جس نے مشکل کیا اس کی حکومت کا خاتمے کے لیے آپ کے خادم نے جد و جہد شروع کر دی. ارے واہ, پھر ان کو سکھ کی سانس ہے. اچھا واللہ یہ فرمائے گا کہ آپ نے یہ کس بنیاد پہ کہہ دیا, بلکہ یہ کس بنیاد پہ فتویٰ دے دیا کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے حرام حکومت ہے؟ اسی طرف میں آنے والا تھا. اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا ہے, آپ ظاہر ایک سمجھدار صاحب ہی ہیں. دیکھو, جس کی وجہ سے قوم کی سانس بند ہو جائے, اور ویسے بھی جنید صاحب جب سے اس شخص کی حکومت آئی ہے, اس نے پاکستان سے تہذیب کا اور اخلاق کا جنازہ نکال دیا. اس لیے میں اس کو حرام حکومت سمجھتا ہوں. اور اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 30 لاکھ آدمی لے کے اسلام آباد بند کر دیں گے. دھرنا دیں گے مولانا؟ نہیں, دھرنا بھی اس آدمی نے دے کے آرام کر دیا ہوا. اچھا, ہم جلوس لے کے جائیں گے اور اسلام آباد کو بند کر دیں گے. وہاں پہ انشاءاللہ جا کے اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر بیٹھیں گے اور ان کو حکومت نہیں جب کرنے دیں گے. لیکن مولانا حکومت کا کام بند کر دینا, 30 لاکھ لوگ اسلام آباد میں جمع کرنا, یہ ممکن ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے اس وقت کی سب سے اہم بات کی ہے, اس لیے میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے, شیخ رشید نے جو کہا ہے آپ نے وہ نہیں سنا. شیخ رشید, بلکہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ واحد ایک فضل الرحمان ایسا آدمی ہے جو حکومت کا ناطقہ بند کر سکتا ہے. اور یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ شیخ رشید صاحب ایک جہاں دیدہ سیاستدان, بلکہ فل ٹائم سیاستدان, بلکہ 24 گھنٹے کے سیاستدان, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے اب تک کے سیاستدان, چونکہ انہوں نے سیاست کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں کیا. یہاں تک کہ انہوں نے شادی نہیں کی, صرف سیاست کی طرف متوجہ رہنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر نہیں آباد کیا. اچھا مولانا, اگر آپ شیخ رشید صاحب کی اتنی عزت کرتے ہیں تو ان کی وہ فرمائش بھی مان لیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی شاگردی سے میں بلاول کو اپنی شاگردی میں لے لوں گا, ان کی یہ فرمائش بھی مان لیں. یہ تو شیخ صاحب کی شرارت ہے. دیکھو, شیخ صاحب عوامی آدمی ہے, اس لیے وہ سیریس ڈائلاگ میں جگت بھی ضرور کرتے ہیں. یہ ایک عوامی فنکار کی نشانی ہوتی ہے. تو آپ بھی کیا کریں نا, لوگ آپ سے بھی سننا چاہتے ہیں ہلکی پھلکی گفتگو. نہیں تو میں تو کرتا ہوں, میرے ذہن میں جب بھی کوئی جگت آتی ہے تو میں ضرور کرتا ہوں. ابھی جو میں نے آ کے یہ زلفی صاحب کی وہ ٹائی اتروائی اور ان کا کالر پھاڑا,
वो क्या को मैंने सचमुच पढ़ा था? भाई वो जुगत ही थी। तो ये मुझे तो कोई सामने जुगत नजर आती है, महसूस होती है, तो मैं कर देता हूँ। जैसे ये अभी ये देखे ना, ये गौरी साहब के ऊपर मेरा नजर अभी पड़ी है। इन्होंने सब्ज रंग का कोट पहना हुआ है, माशाल्लाह। तो ऐसे लग रहा है कि कौवा है और तोता बनने की स्ट्रगल में है। जुगते करते हो फिर तुसी समझे जी पहुंचे नहीं ना तुसी वो माइंड कर गया मौला। ये आपने जुगत किया है या बदुआ दी है? तो बात हो रहा था ये शेख रशीद साहब का, ये जो इन्होंने कहा है कि ये शागिर्दी से निकाल के तो मेरी शागिर्दी भी दे दी, तो भाई आप ले ले अपनी शागिर्दी में, अगर आपकी इस एक स्टूडेंट से एकेडमी चलती है तो आप चला ले। तो मैं कौन सा उससे कोई ट्यूशन की फीस लेता हूँ? मौलाना जो करते हैं फीस भी लिल्लाह करते हैं। जी अल्लाह के फजल से जो भी काम किया फी सबीलिल्लाह किया है। अभी जो मैंने 3 जुगते की है फी सबीलिल्लाह की। हालांकि मुझे मालूम है कि आप लोग इस जुगत का पैसे लेते हो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, करनी तो मैंने बात तहजीबियां हैं आज डिस्कस है, मगर एक उससे पहले मेरे ज़हन में बात है, बल्कि मशवरा है जो मैं तुम्हें जरूर कहूंगा। अगर तुम हुकामे बाला तक बात पहुंचाओ तो बड़ा फायदा होगा इसका, याद रखना। और तेन पता कि अजीजी दा क्या ते औलियां दा खादा हमेशा बात से पता लगता फिर जो तो टेढ़ च दर्द होंदी है कि बहुते खा बैठा। यार खा नहीं बैठा, बात करने लगा। क्या जी जी, मैं ये ज़हन में सोच रहा था कि ये जो मेडिकल कार्ड नहीं बनाना चाह रही हुकूमत लोगों को, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। हाँ जी, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, इसमें खुदा के वास्ते एक शिक रखवा दो जी। यार। इस मुल्क का 100 साल भी हिसाब कर दे रहोगे ना, तो सबसे जो जड़ है ना खामियों की, वो पॉपुलेशन ही है। जुनैद साहब, मैं कल परसों वो जो शहीद हुआ है कराची में सिपाही, जी ईमान से उसके मुतल्लिक पढ़ के सोच रहा था, उस बेचारे के यार 7 बच्चे थे, को 5 उसकी बहन फौत हो गई हुई, या उसके बच्चे, यानी 12 बच्चों की वो परवरिश कर रहा था बेचारा। और रात को किसी पेंचरों वाली ड्यूटी देता था, पेंचरों की दुकान भी करता था। मैं सोच रहा था कि हम इस पे क्यों नहीं अभी तक काबू पा सकते। बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। खुदा की कसम, अगर सिर्फ इतना कर देना, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दे रहे हैं जी, ये कह दें कि 2 बच्चों के लिए ये होगा इंश्योरेंस कार्ड, और तीसरा बच्चा अगर होगा तो उसका खर्चा आप खुद करेंगे, वो इस कार्ड से नहीं होगा। आज ये बात अनाउंस कर देना ताकि और आने वाले चौथा अगर बच्चा हो तो आपका कार्ड कैंसिल हो जाए। कोई कानून बनता है तो फिर ही काबू और पाया अगर जा 5वां या 6ठा बच्चा हो तो फिर उल्टा आपने कार्ड बना के देना है किसी हुकूमत को। हाँ जी, हुकूमत को, सही बात है। हुकूमत फिर कार्ड वाली ही हो गई ना बेचारी, कार्ड की मदद नाली चलने वाली हो गई। ये आप देखें ना, चाइना में कहीं जहां भी पॉपुलेशन पे काबू पाया गया है वहां पे कानून बना है। ये सिर्फ कैंपेन चलाने से या उलमा से फतवे लेने से इन चीजों से काम नहीं चलना, कानून बनाना पड़ेगा। कानून, हौसला शिकनी की जाए कानून के जरिए, जैसे कम बच्चे के लिए जो चाइना ने किया, और जब उनको जरूरत थी कि अब उनकी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए तो उन्होंने किसी तरीके से कानून ही को इस्तेमाल किया, इंसेंटिव दिए, इंसेंटिव रोक के। और यही करना पड़ेगा अल्टीमेटली। जी 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 जी, इसलिए प्लीज इसको बबांगे दोहल शोर मचा दो इस बात का। और बात तहजीबी इस हवाले से कई जहन में आती है जो मैं डिस्कस करने लगा था आज, जिसकी वजह से ये भी बात मेरे ज़हन में आ गई। आप देखें ना कि किसी जगह पे भी जहां क्यू की जरूरत है, कतार की जरूरत है, लाइन की जरूरत है, ईमान से इतना बंदा है कि जगह ही नहीं लैन बनाना। अगर बनी हुई है जगह तो बाहर तक आई है, 10-12 दुकाना का नाल दुकानदारी खराब की है। इस तरह की चीजों को ना जी, ऐसी जो सूरत हाल है उसको मिसाल बनाने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पे, मेरे ज़हन में जैसे आता है ये जो बहावलपुर के प्रोफेसर साहब को कत्ल किया गया है, मर्डर जिनका हुआ है,
किधर गया वो केस? हुकूमत को चाहिए था कि उसको सबसे इंपॉर्टेंट, यार उस्ताद का मर्डर हुआ, फौरी तौर पे उसको वजीर आजम साहब कैप्चर करते केस को। ये जिस तरह बच्ची का इस तरह यहाँ पे कसूर में वाकया हुआ था और उसको मिसाल बनाया गया, इसी तरह ऐसे केसों को मिसाल बनाएं ताकि आइंदा किसी की जरूरत ना हो। आदम उस बर्दाश्त का प्रोफेसर रवैया के जो है वो खत्म सारे हो जाए। कुलीग्स, जितने भी उसके कॉलेज के कुलीग्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये ऐसा आदमी नहीं था, कोई ये इस्लाम के खिलाफ बात नहीं था करता, कोई ये यहाँ की सकाफत के खिलाफ बात नहीं था करता, वो फजूल उसको उस पे मुद्दा डाल रहे हैं। फिर अभी एक लम्हा रुको, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई ऐसी काबिल एतराज बात करता भी है तो फिर भी किसी तालिब इल्म को कौन सा कानून, कौन सा दस्तूर, कौन सी अखलाकियात, कौन सा दीन ये इजाजत देता है कि आप अपने तय ये फैसला कर लें कि मैंने इसको कत्ल कर दिया, मर्डर ही कर दिया, मर्डर कर दिया। और आपने ये पूरे पाकिस्तान की, पूरे मुल्क की तालीम को मजरू कर बिल्कुल आगरा जख्मी कर दिया बाखुदा। अब फिर एक बारात में कोई जेब कतरे घुसे हैं, उधर उन्होंने पकड़ लिए हैं, तो वहां पे वो जेब कतरों के कोई 60-70 बंदे आ गए, डांगा चल गई, जख्मी हो गए, चाकू चल गए। उस केस को भी फौरी तौर पे आला हुकाम को चाहिए था कि अपने हाथ में लेके मिसाल बनाते। बिल्कुल क्या ना करो यार, एक वो जेब कतरे हैं, चोरों डाकुओं जेब कतरों के अगर साथ देने वाले इस तरह सरेआम बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बेहाल, और आज की पते की बात ये कि इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, तब समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। वाह 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 वाह, इस तरह बने ये दानिश्वर। तुम लोग कहते हो कि ये तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, तुम तो बातें छोटी छोटी करते हो, ये छोटी छोटी बातें समझ के आज जुनैद सलीम हो गया। खुश रहे, खुश रखे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। वेल डन जूनी।